about how Siddhartha, who later became Buddha, found something called the middle path? Let me share it with you in a way that's easy to understand. Siddhartha wanted to find inner peace and become enlightened. He thought the way to do this was by doing extreme things like not eating and hurting his body. But these extreme practices made him very weak and sick, almost like he was about to die. Then, one day, a kind girl saw Siddhartha and noticed his suffering. She had a bowl of delicious rice pudding with her and asked, "Would you like some rice pudding?" Siddhartha stopped and thought, realizing that his extreme methods weren't working. So, he said, "Yes, I would like some rice pudding." As he ate the pudding and enjoyed its simple goodness, he had an important realization. He understood that the path to enlightenment wasn't about extremes, but about finding balance, a middle way. Under a peaceful tree, Siddhartha made a decision. He decided to give up the extreme practices and follow the middle path, which means finding a balanced and moderate way of living. And it was on this middle path that he eventually found enlightenment. Ark might not be the first great flood story after all? Yes, you heard it right. Long before the Bible, ancient Indian texts like the Matsya Purana described a nearly identical tale. According to the legend, Lord Vishnu took the form of a giant fish, known as Matsya, to save humanity from a massive flood that threatened to wipe out all life on Earth. In this story, a king named Manu was warned about the coming disaster. Vishnu, in his fish form, told Manu to build a huge boat and carry with him seeds of every plant, the sacred scriptures, and the beings necessary to start life again. When the waters rose, Matsya guided Manu's boat safely through the raging flood, ensuring the survival of humanity and the world's knowledge. This ancient flood myth is strikingly similar to the story of Noah's Ark, but the Hindu version is thousands of years older, which raises a powerful question. Did different cultures witness the same catastrophic flood? Tell us in comments. लोग उसे पुराण कहते हैं। हमारे पुराणों में प्राचीन भारत का इतिहास है। युगों युगों से चली आ रही मनुष्य सृष्टि के कल्याण हेतु हर काल में किसी न किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। त्रेता युग में राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश दिया, समाज के चरित्र का निर्माण किया। द्वापर युग में कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत समझाया और धर्म की संस्थापना की। पर समय चलते धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा। असत्य, अराजकता, असमानता, अस्पृश्यता, अर्थ सिद्धि और अंधश्रद्धा का पाखंड चारों ओर फैलने लगा। मनुष्य भयभीत हो अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इसी अंधकार को दूर करने पुनः एक युग पुरुष जन्म लेने वाला था, और इस बार उस युग पुरुष का नाम था बुद्ध। महाभारत युद्ध पश्चात कई युग बीत चुके थे। उस महायुद्ध की परछाई ने भारतवर्ष को कई हिस्सों में बांट दिया था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिलवस्तु। उस समय कपिलवस्तु पर शाक्य कुल के पराक्रमी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा शुद्धोधन का शासन था। शाक्य राजा शुद्धोधन ने कोलिया राज्य की राजकुमारी महामाया से शादी की। 5 साल तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था। बाद में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सेज आसिता की भविष्यवाणी थी कि आपका पुत्र बुद्ध बनेगा, अगला शाक्य राजा नहीं। महामाया की मृत्यु हो गई। शुद्धोधन ने महामाया की बहन गौतमी प्रजापति से शादी की और शुद्धोधन ने नंद और सुंदरी का जन्म दिया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। மன்னருக்கும் இவரு அவதாரம் இல்ல। நம்ம பாரத தேசத்துல கபிலவஸ்துங்கிற ஊர்ல இயேசுநாதர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 567ஆம் ஆண்டு இவர் பிறந்துட்டாரு। சுத்தோதனருங்கிற மன்னருக்கும் மாயாதேவிங்கிற மகாராணிக்கும் மகனாக பிறந்தவர் இவர்। அரச குடும்பத்துல பிறந்தவரா ஆண்டி கோலத்துல இப்படி? மன்னனானா சட்டம் போட்டு மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனா அவங்க மனசை மாற்ற முடியாது। மகானா மாறினாதான் மக்கள் மனசை மாத்தி அவங்கள நல்வழிப்படுத்த முடியும்னு சித்தார்த்தர் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கே போயிட்டாரு। அருமையான மனைவி, அழகான மகன், பாசமுள்ள தந்தையை பிரிந்து துறவரம் பூண்ட தூயவர் இவர்। இவங்களையெல்லாம் விட்டு பிரிஞ்சு வர இவருக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு? அப்படி கேளு,
அவங்களெல்லாம் தவிக்க விட்டு வந்தவர் தானே இவரு? அப்படி இல்லப்பா. 2 நாட்டு மக்கள் நதிநீர் பிரச்சனைக்காக சண்டையிட்டு சாவதை தடுப்பதற்காக தன்னொரு குடும்பம் தவிப்பது பெருசில்லன்னு நாடு விட்டு காடேகியவர் இவர். என்னென்ன புதுக்கதை விடுறீங்க? பிணி, மூப்பு, சாக்காட்டு கஞ்சி தானே புத்தர் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு ஓடினாருன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. அப்படித்தான் சொல்றாங்க. ஆனா அர்த்தம் தான் வேற. தன்னோட நாட்டில் பிணியை போல பரவியுள்ள சாதி, மத, இன மோதல்களை, தீண்டாமை கொடுமைகளை கண்டு அஞ்சினார். மூப்புங்கிற பழமை முதுமைங்கிற கண்மூடித்தனமான பழக்க வழக்கங்க, பேய் ஓட்டுறது, விக்கிரக வழிபாடு, சாமி ஆடுறது, மாய மந்திர தந்திரங்கள்லாம் கண்டு அச்சப்பட்டார். யாகம், வேள்வி என்னும் பெயரால் ஆடு, மாடு, கோழிகளை, மனிதர்களை நரபலியிடுவதை, உயிர் பலியிடுவதை சாக்காடாக கண்டு அவர் அஞ்சினார். காலாகாலமா மக்கள் மனசுல பதிஞ்சிட்ட இந்த மத சடங்குகளை மன்னனாக இருந்தா களைய முடியாது, மத விரோதி என இந்த மக்கள் முத்திர குத்தி இந்த நாட்டே நிலகுலைய செய்திருவாங்கன்னு அவர் அச்சப்பட்டார். அதனால தான் சித்தார்த்தர் மன்னராகி மத அடிமையாகிட விரும்பாமல் மக்கள் மனதை தெளிய வைக்க அவர் துறவரம் மேற்கொண்டார். நல்லா சொன்னீங்கண்ணே. நான் கூட நினைச்சதுண்டு, பிணி, மூப்பு, சாக்காட்டு கஞ்சி தான் புத்தர் நாட்டையே விட்டு காட்டுக்கு ஓடினார்னா அவர் நாட்டுக்குள்ள வரும்போது பிணியே வராத மூலிகையை கொண்டு வந்திருக்கணும், மூப்பே வராத சூரணத்தை கொண்டு வந்திருக்கணும், சாவே வராத அமிர்தத்தை கொண்டு வந்திருக்கணுமே. ஆனா இவரோ அதையெல்லாம் கொண்டு வராம புத்தம், தம்மம், சங்கம்னு அறவுரைகளை மட்டுமே அறிவுரைகளா கொண்டு வந்தப்போவே நினைச்சேன் இதுல ஏதோ தில்லுமுள்ளு நடந்திருக்குன்னு. ஆமா, அது என்னென்ன நதிநீர் பிரச்சனை? இப்ப நம்ம மாநிலத்துக்கும் அண்டை மாநிலத்துக்கும் நதிநீரை பங்கிட்டு கொள்றதுல தகராறு இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ரோகிணி நதி நீரை பங்கிட்டு கொள்றதுல பிரச்சனை இருந்துச்சு. சாக்கியர் சங்கத்தில் இது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. கோலியர்கள் மேல் போர் தொடுத்து உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சேனாதிபதி முன்மொழிந்தார். போர் கூடாது, பேசியே சமரசம் காணணும்னு அரசகுமாரரான சித்தார்த்தர் மறுப்பு தெரிவிச்சாரு. ஆனா போர் செய்தே தீர வேண்டும் என்று பெரும்பான்மையோர் குரல் கொடுத்தனர். போரால 2 நாட்டு மக்களும் ரத்தம் சிந்த நேரிடும், உயிர் பலிகள் ஏற்படும், அதனால தான் பங்கேற்க முடியாதுன்னு சித்தார்த்தர் சொல்லிட்டாரு. சங்க விதிகளின்படி போரில் பங்கெடுக்காதவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும், அல்லது நாடு விட்டு நாடு கடத்த வேண்டும், அல்லது தூக்கிலிட வேண்டும் என்பதெல்லாம் சங்கத்தின் விதிமுறைகள். தன்னால தன் தந்தையாருக்கும் குடும்பத்துக்கும் துன்பம் ஏற்பட்டுடக்கூடாதுன்னு தானே துன்பங்களை ஏற்று 2 நாட்டு மக்களின் உயிர் பலியை தடுப்பதற்காக துறவரம் மேற்கொண்டு நாட்டை விட்டு காடேகினார். இதனால் போர் தடுக்கப்பட்டது, பேசியே பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதிய டாக்டர் அம்பேத்கர் கூட புத்தரை போலவே தான் வகிச்ச சட்ட அமைச்சர் பதவியை திறந்தார்னு பேசிக்கிறாங்களே. ஆமா, இந்திய பெண்களுக்கு எந்த உரிமையும் வழங்கப்படாம ஆணுக்கு பெண் அடிமைங்கிற நிலைமை இருந்துச்சு. இந்த நிலைமையை மாத்தி ஆண்களுக்கு நிகரான உரிமைகளை பெண்களுக்கும் தரப்பட வேணும்னு இந்து மசோதா சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்துல சமர்ப்பிச்சாரு. புத்தருடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதைப் போலவே டாக்டர் அம்பேத்கரின் கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்பட்டதால் அவர் சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாராளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறினார். அட, Buddha chose Mahanama or Bhikkhu. I want to be the head of a Bhikkhu order. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे सक्के और चकमा समुदाय के पूर्वजों के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे सक्के समुदाय की उत्पत्ति और उनके विनाश के कारण, और चकमा समुदाय किस प्रकार सक्के समुदाय से संबंध रखते हैं उसका ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर हम जानेंगे। भगवान बुद्ध के जन्म के 2000 साल पहले साइटियन नाम का एक समुदाय हुआ करता था, जो समुदाय पर्यावरण के बदलने के कारण 1000 BC तक वो तिब्बत, बर्मा और चीन पहुंचे, और 600 BC तक ये साइटियंस हिमालय के पूर्वज की ओर आ पहुंचे। मध्य एशिया के लोगों को उस समय साका और साइटियन नाम से जाना जाता था, और प्राचीन काल में चाक लोगों को साइटियन नाम से जाना जाता था। इतिहास के जनक हेरोडोटस का मानना है साइटियन लोग एशिया में साका के रूप में रहे थे, और इतिहास इसके ओर इशारा करता है कि साके लोग बहुत सारे समुदाय गुल मिलकर बने थे, जिसमें 2 प्रकार के हाइपोथेटिकल विश्लेषण है साके कहां से उत्पन्न हुए। पहला नेपाल के हिमालय रेंज से, दूसरा भारत के सबसे प्राचीन शहर जम्बूदीपा बनारस शाही परिवार से। उस समय देश बहुत सारे हिस्सों में बांटा हुआ था और स्वतंत्र राज्य के द्वारा प्रशासन किया जाता था, जिसमें से कुछ देश राजतंत्रीय और कुछ देश गैर राजतंत्रीय देश था।
राजतंत्री देशों को जनपद और गैर राजतंत्री देशों को गण और संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें से शक्य संघ गैर राजतंत्री देश था, जिसमें शक्य संघ के द्वारा बारी बारी से प्रशासन किया जाता था और उनके राजधानी कपिल वस्तु था। और उस समय कपिल वस्तु में जयासेन नाम का एक व्यक्ति था, जिनके बेटा सिंहनु का शादी कंचना से हुआ और उनके शादी होने के बाद उनके 5 पुत्र और 2 बेटियां हुए, जैसे शुद्धोदना, दुत्तोदना, शुक्लदना, शक्कोदना, अमितोदना एवं अमिता एंड प्रमिता। शुद्धोदन सबसे बड़ा पुत्र था, जिनका शादी महामाया से हुआ और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी सन में हुआ और जो आगे जाकर बुद्ध बने। आचार्य बुद्ध धर्मसूत्र एवं महापादना सूत्र के अनुसार जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन शैली को अपनाया एवं भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उन सभी लोगों को शक्य कहा गया। इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में शक्यों का नरसंहार हुआ था, जो इस प्रकार है। शक्य एक प्रतिष्ठित और चालाक व्यक्ति थे। उस समय शक्य संघों के पड़ोसी देश कौशला नरेश राजा प्रसन्नजीत ने शक्य संघ से एक बेटी अपनी पत्नी के रूप में मांगे। शक्य संघ उसे मना नहीं कर सकते थे और अपना बेटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए शक्य संघ ने अपनी नौकरानी के बेटी को शक्य संघ के बेटी के रूप में राजा प्रसन्नजीत को दे दिए, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत और उस लड़की से एक बेटा का जन्म हुआ, जिसके नाम विडुबा रखा गया। जब विडुबा अपने नानी के घर घूमने गया तो सच्चाई बाहर आ गया, जिसके चलते राजा प्रसन्नजीत ने विडुबा और उनके रानी को त्याग दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के समझाने के बाद राजा प्रसन्नजीत ने अपने बेटा और रानी को पुनः स्वीकार कर लिया। जब आगे जाकर विडुबा राजा बने तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए शक्य संघ के ऊपर हमला किए, जिसके चलते 50,000 से अधिक शक्य लोगों का नरसंहार हुआ। इस प्रकार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 सालों के बाद भी अनेक बार शक्य के ऊपर हमला और उनके कत्लेआम हुआ। बहुत सारे शक्य अपने अनुयायियों के साथ भाग गए और कहीं जाकर अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए, जिनके धर्म, संस्कृति और तत्वज्ञान बुद्धिज्म था। आज भी शक्य के लोग नेपाल और भारत के लद्दाख के कुछ हिस्से में पाया जाता है और वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। इतिहास में कुछ शक्य राजा का नाम दर्ज है, जैसे अभिराजा, दजराजा और बिंदके राजा। अभिराजा को चकमा समुदाय के लोग अपने पूर्वज मानते हैं, जो दजराजा जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। म्यांमार के इतिहासकारों का मानना है कि शक्य राजा अभिराजा और बिंदके राजा के पुत्र म्यांमार के कुबू बेली कर्णपुली नदी के पास अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए और म्यांमार में उपनिवेशिक लोगों को चाक और तैक के रूप में जाना जाता था। शायद वो लोग शक्य के मूल वंशज थे। आज भी बर्मिश लोगों के द्वारा चकमा लोगों को चाक और तैक के रूप में संबोधित किया जाता है और ये शब्द चकमा लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे चाकमा और तैटमा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और ये तीचाक का शब्द गवाही है चाक लोगों के होने का। इसलिए बांग्लादेश के चिटिगंग हिल ट्रैक के चकमा समुदाय और छक्के लोगों के साथ बहुत सारे समानताएं हैं। दलल चौधरी एवं जर्मन के मानव वैज्ञानिक डॉक्टर एस बासट के अनुसार चकमा समुदाय के लोग साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी थे और वे बुद्ध धर्म को सदियों से पालन करते हुए आ रहे हैं। चकमा इतिहासकारों का मानना है कि वो भी हिमालयन समुदाय से शक्य का एक अभिन्न अंग है और खुद को शक्य संघ का एक वंशज मानते हैं, जो समय के चलते आगे जाकर शक्य का अर्थ चकमा में परिवर्तन हो गया। जैसे कि शक्य, चाक और चाक के आगे माँ का मतलब आदमी होता है तिब्बतियन और बर्मिश भाषा में, जिसे चक्य आदमी कहा जाता है। बर्मिश वर्णनी के अनुसार काइशियो क्यंगता चोएंग का मतलब चकमा होता है। चकमा लोगों के काल्पनिक इतिहास में
आज भी ये झलकता है कि एक असहाय शाही परिवार के एक व्यक्ति सबके जीवन के एक नया भिक्खु जीवन को नेतृत्व कर रहे थे, जिसे मोइसांग रास के नाम से जाना जाता है। मोइसांग का मतलब होता है धार्मिक जीवन में एक नयापन। चकमा समुदाय के लोग आज भी इस लोक के माध्यम से अपना खोया हुआ साम्राज्य चंपक नगर में वापस जाने की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। एलोंग मोइसांग लालस ने ना एलोंग मोइसांग लालस ने, चल बाबे चल चंपक नगर फिरी जाए। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रशासक एवं कर्नल पायरे की पुस्तक द बर्मा हिस्ट्री के अनुसार चकमा समुदाय एक समय में बर्मा म्यांमार में रह चुके हैं और ये बात 1118 एडी के अरकन हिस्ट्री ढंगवाटी आरिफुंग में उल्लेख है। बर्मिस राजा के द्वारा चकमा समुदाय के लोगों को अपने राज्य में मंत्री, सलाहकार एवं पाली अनुवादक के रूप में काम दिया करते थे और कुछ लोगों के अनुसार चकमा नाम प्राकृत और पाली भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब महान और शक्तिशाली होता है, और ये नाम बगन इरा के समय बर्मिस राजा के द्वारा चकमा लोगों को दिया गया था। प्राचीन काल में चंपा नामक एक जगह बौद्ध संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन उस जगह का सही पहचान अब तक नहीं हो पाया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जगह भगलपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। जॉन्स मार्करे शोधकार्य द अकाउंट ऑफ कुकीज के अनुसार चौमास लोग उत्तरी पूर्वी के बसने वाले पहला निवासी थे और उनके गांव को चोमा कहा जाता था, और कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे चुकमा उल्लेख किया है, जो नाम की एक काल्पनिक कहानी चंपक नगर से जोड़ता है, जो सेबेसी का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। चंपक नगर आज भी बगलपुर के बाजू में बिहार में आज भी मौजूद है। चकमा लोगों का मानना है कि वे लोग मगध राज्य से आराकान वर्तमान म्यांमार में वहां स्थानांतरित हुए। उस समय राजा बिंबिसार का साम्राज्य बुद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था और राजा बिंबिसार के बहुत सारे नागरिक बुद्ध धर्म में शामिल हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुछ समय के लिए भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ में चीवर धारण करके रहने लगे, जिसमें से एक समुदाय चकमा समुदाय है। आज भी उनके समुदाय में कुछ समय के लिए कम से कम 7 दिन के लिए उन सभी को भिक्खु बनना अनिवार्य है। और ये मगधा शब्द आज भी चकमा समुदाय में प्रचलित है। जब भी वो दुखी होते हैं मगधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चकमा समुदाय के लोग बगलपुर बिहार में रह चुके हैं। ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ सवारंग ये सिद्ध कर, क्योंकि चकमा जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने साथ ये प्रसिद्ध मसाला पेड़ लेके जाते हैं और जहाँ पर वो रह चुके हैं वहाँ पर आज भी पाया जाता है। बगलपुर में ये पाया जाने वाले सवारंग ट्री के बारे में आज बिहारी लोगों को पता नहीं है। इस पेड़ के हिसाब से देखा जाए तो चकमा समुदाय के लोग पहले बिहार और बगलपुर में रह चुके हैं। चकमा इतिहास अगरतला के अनुसार सदियों पहले चंपकनगर बिहार में एक सूर्यवंशी राजा के पास 2 पुत्र थे, जिनके नाम विजयगिरी और समरगिरी थे। विजयगिरी सेनापति था। जब वो मेघा नदी पार करके आरकान में हमला किया तो उनका विजय हुआ। युद्ध जीतने के बाद जब वो चंपकनगर वापस आने वाले थे तभी उनके पास एक समाचार पहुंचा कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है और उनका छोटा भाई समरगिरी राजगद्दी ले चुका है। तो इसलिए विजयगिरी आरकान राजा के साथ एक संधि करके वहां पर बच गए। नाप नदी सिटीगांव हिल डिस्ट्रिक्ट के पास। चंपक नगर नाम से एक और जगह म्यांमार में स्थित है, जो पहले चक्के का केंद्र हुआ करता था। चकमा समुदाय का एक प्रचलन है, जब भी वो कहीं जाते थे तो पुराने शहर के नाम से एक नया शहर बचाते थे। जैसे इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, चकमा समुदाय और इरावती वैली म्यांमार के चाका और तैत के लोगों के साथ संबंध जुड़ रहा है। H.H. रेटली अपने पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में चकमा समुदाय के लोगों को लोहिटिक ट्राइब्स ऑफ चिट्टीगांव हिल ट्रैक के रूप में वर्णन किया है। इस बात को प्रिडिक मिलर एवं जर्मनिस्ट मानव वैज्ञानिक लोगों ने भी माना है, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध रखते हैं एवं
हिमालय के पर्वत के तलहटी से आए हुए लोग हैं। इतिहासकार सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी जनजातियां जैसे शक्य, कोलिया, लिच्छिविक, मौर्य ये पहले मंगोलियन ओरिजिन थे या शायद मंगोलियन ओरिजिन के साथ समाहित हो चुके थे और चकमा समुदाय के लोग हिमालय पर्वत में पहले रह चुके हैं। म्यांमार के बर्मीज लोग आज भी चकमा समुदाय के लोगों को चाक, तेक और ताइक के रूप में संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के तथ्यों को और वर्तमान समय के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है शक्य और चकमा समुदाय में बहुत सारे समानताएं हैं। चकमा समुदाय के लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुगलों और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। इस बात को अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। चकमा समुदाय के राजाओं को खान और रॉय टाइटल से नवाजा गया। चकमा समुदाय ने इन सभी उपाधि को स्वीकार किए, लेकिन इतिहास में किसी चकमा राजा ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए। 1850 के दशक में चकमा रानी कलिंदी रानी के सामने ब्रिटिश लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करिए, हम आपके समुदाय के सभी लोगों का जीवन शैली बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए चकमा रानी कलिंदी रानी ने ये कहा कि हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर अच्छा है और ये जीवन शैली शक्य वंश से संबंध रखते हैं। ब्रिटिश और मुगलों के द्वारा चकमा लोगों के ऊपर असंख्य अत्याचार किया गया, लेकिन उन सभी चीजों का सहन करते हुए चकमा समुदाय के लोगों ने कभी मुगलों का धर्म और ईसाई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि वो खुद को शक्य वंश का वंशज मानते थे। आज भी चकमा समुदाय के लोग स्वयं को शक्य वंश का एक अंश मानते हैं और इस बात को मानते हुए आज भी वो बुद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। चकमा समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या चकमा समुदाय के लोगों को शक्यवंशी कहा जा सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी जानकारी दूसरे के ओर तक पहुंचे। हमारे चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते, तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को चलाते। गीता narrated by Lord Krishna। भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हम कृष्ण भगवान की सुनाई भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं? अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण आखिरी अध्याय में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यात्यम गुख्यात गुख्यतरम मया विमृशयतेद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें बता दिया है, अब इस पे पूरी तरह से मनन करो, फिर जो चाहे सो करो। द चॉइस इज योर्स। रामायण में श्री राम भी अयोध्या वासियों को लाइफ का पर्पस बताने के बाद उनसे कहते हैं कि जो सलाह मैंने तुम्हें दी है वो ना तो गलत है और ना ही बलपूर्वक है। इसे ध्यान से सुनो, इस पे विचार करो और फिर जो सही लगे वो करो। यानी कि ना ही कोई स्मृति, ना ही कोई एंशिएंट ट्रेडिशन और ना ही कोई किताब इंसान की चेतना से ऊपर है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी होली किताब से ही गवर्न होता और उसे अपनी किताब को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं होता, तो क्या उसकी बुद्धि और चेतना किसी स्लेव से कम होती? 13 अक्टूबर 1935 का दिन था। डॉक्टर अंबेडकर योला कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जो बहुतों को अजीब लगा। उन्होंने भरी सभा में डिक्लेयर किया कि उनका जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ हो, लेकिन वो एज अ हिंदू नहीं मरेंगे। ठीक 21 साल बाद यानी 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ मिलकर ऑफिशियली बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो जाती है। अब वो हिंदू नहीं थे बल्कि बौद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर ऊब गए थे हिंदू धर्म में होने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, इसलिए वो कोई ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जिसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जाति व्यवस्था ना हो, कोई वर्ण सिस्टम ना हो। लेकिन क्या सच में बुद्धिज्म में कोई जात पात का भेद नहीं है? आइए आज इसी बात को हम डिटेल में समझते हैं। आप देख रहे हैं क्रोनो क्लैरिटी, मेरा नाम है विजय त्रिपाठी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं, तभी जाकर के आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमेशा की तरह सोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
बात है 6th सेंचुरी BCE की। ये पीरियड था इंटेंस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, जहां वेट राइट कल्टीवेशन हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था, नए नए अर्बन एरियाज इमर्ज हो रहे थे। और यही वो समय था जब इंडिया में पहली बार मॉनेटरी इकोनॉमी डेवलप होता है। हमें इसी एज से कॉइन का पहला एविडेंस मिलता है, यानी ट्रेड और पैसे का लेन देन जोरों पर था। लेकिन इस चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन फिट नहीं बैठ रहा था। वैदिक रिलीजन में एनिमल सैक्रिफाइस पर जोर दिया जाता था, लेकिन नया इकोनॉमिक सिस्टम इसे प्रमोट नहीं करता था। अब एग्रीकल्चर के लिए एनिमल चाहिए तो उसे सैक्रिफाइस क्यों करना? और वैदिक रिलीजन में उसरी यानी सूद पर पैसे का लेन देन को गलत माना जाता था, जो कि मॉनेटरी इकोनॉमी के इथोस से मैच नहीं करती थी। फिर इसी वैदिक रिलीजन में वर्ण व्यवस्था थी जो नए इकोनॉमिक रियलिटी में फिट नहीं बैठ रही थी। अब नए नए वेल्दी क्लास इमर्ज हो रहे थे, जैसे सेठी और गृहपति। बेसिकली जो गृहपति हुआ करते थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिनका बेस था रूरल एरियाज में। लेकिन जो सेठी हुआ करते थे वो थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनका बेस था अर्बन एरिया। ये किसी विशेष वर्ण से बिलोंग नहीं करते थे, ये शूद्र हो सकते थे, वैश्य हो सकते थे। यानी जो इकोनॉमी में एक नई नई हायरार्की बन रही थी वो वैदिक हायरार्की से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सोशल स्टैंडिंग को डिसाइड करने के लिए। यानी ये चेंजेस ओवरऑल वैदिक रिलीजन के साथ कंपैटिबल नहीं थी। और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया में बहुत से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज होते हैं जो वैदिक वर्ल्ड व्यू से इत्तेफाक नहीं रखते थे। जैनिज्म हो या बुद्धिज्म, सभी ने वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। ये नए रिलीजन समझ लीजिए एक ऐसा एथिकल सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहे थे जो नए सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी को सूट करता था। जहां वैदिक रिलीजन में वेल्थ एक्यूमुलेशन को गलत कहा गया है, वहीं ये नए रिलीजन्स इसको प्रमोट करते थे। इसलिए बड़े कम समय में ये रिलीजन्स खास करके बुद्धिज्म स्प्रेड करने लगा। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो बुद्धिज्म वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, जाति सिस्टम के खिलाफ थे, और वो समाज में इक्वालिटी चाहते थे। जैसे बुद्ध के शरण में जाने के बाद इंसान वेवणियंती बन जाता है, मतलब बिना वर्ण के। और वासेट सूत में महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हम पेड़ को, इंसेक्ट को, घास को, इन सबको भले ही हम अलग अलग जाति में बांट सकते हैं क्योंकि इनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम इंसान को कैसे अलग अलग जाति में बांट सकते हैं? इनके तो फिजिकल फीचर्स सेम होते हैं। जैसे सबके पास नाक है, आंख है, कान है, बाल है। अब हाँ, मेरे पास नहीं है, भले सिर पे नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे बहुत बाल है। तो इंसान को डिफरेंट कास्ट में बांटना ये नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड है। इसलिए अगन्य सूत्र डायरेक्टली चैलेंज करता है वैदिक पुरुष सूक्त को। वो बोलता है कि ये डिवीजन जो है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड डिवीजन है। ये जो वर्ण का क्लासिफिकेशन है ये किसी नेचर ने नहीं दिया, किसी ब्रह्म ने नहीं दिया, बल्कि एक ये मैन मेड क्लासिफिकेशन है। इसीलिए हमें बुद्धिज्म में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे लोअर वर्णा के लोगों को प्रॉपर स्पेस दिया गया है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जैसे उपाली, एक बार्बर कास्ट का इंसान, विनय रूल्स का एक्सपर्ट बन जाता है। इसी तरीके से सुनीता लोअर कास्ट होते हुए भी इसे एनलाइटनमेंट मिल जाता है। अब यही उपाली और सुनीता अगर वैदिक वर्ल्ड व्यू में होते तो एनलाइटनमेंट तो दूर, ये वेद को सुन भी नहीं सकते थे। तो बुद्धिज्म में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, एकदम हैप्पी एंडिंग हुआ तो कहानी खत्म हो गई, धन्यवाद। लेकिन जरा रुकिए यहाँ पर, अगर इतनी ही अच्छी डॉक्ट्रिन थी बुद्धिज्म की तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसे एज इट इज अडॉप्ट क्यों नहीं कर लिया? क्यों उन्हें ढेर सारे चेंजेस लाने पड़े बुद्धिज्म में? आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उन्होंने बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया था। ये तो कोर था बुद्धिज्म का। डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से ये एक पेसिमिस्टिक डॉक्ट्रिन है। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म को रिजेक्ट कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हम अंबेडकर के बुद्धिज्म को नवयान बुद्धिज्म बोलते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर बुद्धिज्म में सब कुछ अच्छा था तो क्यों इतने चेंजेस लाने पड़े? इसका जवाब हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ही मिल जाता है, जहां पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट कर्म और रीबर्थ का जो आइडिया था वो खुद ही सोशल इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करता था। बाल पंडित सूत्र में बुद्ध बोलते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो अगले जन्म में उसे लो फैमिली में जन्म लेना होगा, जैसे चांडाल, निषाद या वेना। लेकिन इसके आगे बुद्धिज्म ये भी बोलता है कि क्या हुआ अगर किसी का जन्म नीच कुल में हुआ है, इसके बावजूद भी अपने कर्म और एक्शन से वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बुद्धिज्म में खुद ही किसी ग्रुप को नीच कहा गया है और किसी ग्रुप को उच्च कहा गया है। लेकिन अगर बुद्धिज्म में सब कोई बराबर है, कोई वर्ण नहीं, कोई कास्ट नहीं है, तो नीच और उच्च जैसे शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हम अर्ली बुद्धिज्म में देखते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि रैंकिंग को ऊपर नीचे कर रहे थे। वो क्षत्रिय को इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर मानते थे। अंबट सूत जो कि दिग्घ निकाय का पार्ट है, उसमें हमें इसका क्लियर एविडेंस मिलता है। बुद्ध इसमें बोलते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर लिया तो पैदा हुए बच्चे को ब्राह्मण एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि ब्राह्मण अपने लीनेज की प्योरिटी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। वहीं क्षत्रिय ऐसा नहीं करेंगे। क्षत्रिय में लास्ट 7 जनरेशंस को देखा जाता है। अगर सब कुछ प्योर रहा तभी लड़का और लड़की की शादी होगी। और इसी टेक्स्ट में यह भी लिखा हुआ है कि साका प्रिंस अपने लीनेज की प्योरिटी बचाने के लिए खुद अपने बहनों के साथ सो गए थे। आपको नहीं भरोसा हो रहा है ना? ये अंबट सूत में साफ लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा।
मेरा यहाँ इंसेस्ट का एग्जांपल देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये बताना कि क्षत्रिय अपने लीनेज की प्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, इवन ब्राह्मण से भी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। तो अगर कास्ट एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, कास्ट कुछ नहीं है सोसाइटी के लिए, या वर्ण कुछ नहीं है, तो लीनेज की प्योरिटी के लिए क्यों इतना ये लोग ऑब्सेस्ड थे? आप खुद सोचिए, क्या ये बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता? अब ये बोलना कि मेरा ब्लड लाइन प्योर है, तुम्हारा ब्लड लाइन इम्प्योर है, तो ये खुद में दिखाता है कि हम तुमसे अलग है, मीन्स एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट संघ में क्या हो रहा था। देखिए, बुद्धिज्म में दो तरीके के फॉलोअर्स होते हैं। एक तो वो जो संघ को ज्वाइन करके भिक्षु बन जाते हैं, और दूसरे वो जो ऑफिशियली संघ को ज्वाइन नहीं करते हैं लेकिन बाहर से सपोर्ट करते हैं। इन्हें हम उपासक कहते हैं। तो एक भिक्षु होंगे और एक उपासक। उपासक बेसिकली बुद्ध की बातों को मानकर उसी हिसाब से अपना जीवन जीते थे। तो समाज में उस समय वर्ण और जाति व्यवस्था तो थी, और उपासक भी इसी समाज से आते थे। तो हो सकता है कि ये उपासक भी जाति और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जी रहे हों। तो इसमें बुद्धिज्म का क्या दोष है? भाई, बुद्धिज्म तो 100% लोग फॉलो नहीं करते थे कि अगर उस समय जाति और वर्ण व्यवस्था है तो हम कल्प्रिट बना दे बुद्धिज्म को, क्योंकि बुद्धिज्म का कंट्रोल नहीं था 100% सोसाइटी पे। लेकिन संघ पे तो उनका 100% कंट्रोल था। वहां तो विनय रूल्स फॉलो हो रहे थे, तो वहां तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। हमें बुद्धिस्ट संघ में भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। चलिए उस पर नजर डालते हैं। विनय पिटक के रूल्स कुछ लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि वो संघ को ज्वाइन करें, जैसे स्लेव्स बिना अपने मास्टर के परमिशन के, सोल्जर्स बिना किंग के परमिशन के, डेटर्स जब तक वो कर्ज मुक्त ना हो जाए। अब ऐसा ना हो कि कोई पैसा उधार लिया और बोले कि अब मैं इस मोह माया को त्याग रहा हूं और चला जाए बुद्धिस्ट संघ में। अगर ये अलाउड होता तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग संघ को ज्वाइन कर लेते। तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रूल्स थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि स्लेव्स को मास्टर का एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी माना जाता था। उनके पास अपना कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था। तो कहां से बना ये इक्वल सोसाइटी? और इस स्लेव मास्टर के रिलेशन को अबॉलिश करने के बजाय बुद्धिस्ट एथिक्स में इसे ह्यूमनाइज किया जा रहा था। जैसे सिगालवाद सूत एडवाइस करता है कि मास्टर्स को अपने दास के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी टेक्स्ट में मेंशन है कि एक दासी को ब्रूटली असॉल्ट किया गया था। और फिर जब एक बार कोई संघ को ज्वाइन कर लेता था तो वो इन थ्योरी वेवडियंती बन जाता था, मतलब बिना वर्ण के। तो ये तो रहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मींस ऐसा होना चाहिए था, प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, क्या वो आप ऐसा करते हैं? तो चलिए देखते हैं सच्चाई क्या थी। बुद्धिस्ट के क्लोजेस्ट डिसाइपल्स सारिपुत, मोगलन्ना, महाकसप्पा, ये सब ब्राह्मण थे। और फिर 105 भिक्खु और भिक्खुणी जिसे हम टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से 83 उच्च कुल के थे, 39 ब्राह्मण थे, 28 क्षत्रिय और सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जिनका लो कास्ट बैकग्राउंड था। तो संघ की डेमोग्राफी तो कुछ और कहानी बता रही है। यहाँ तो हमें कहीं से इक्वालिटी नहीं दिख रहा है। तो थ्योरी और रियलिटी में बहुत डिफरेंसेस थे। तो चलिए अब चलते हैं हम विमेन के केस पे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि विमेन को संघ में इंक्लूड किया जाए। इवन महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी फॉस्टर मदर थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि विमेन को भी इंक्लूड किया जाए संघ में, लेकिन बुद्ध नहीं माने। फिर बुद्ध के डिसाइपल आनंद ने भी रिक्वेस्ट किया कि विमेन को इंक्लूड किया जाए। इस पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर विमेन को हम इंक्लूड कर लेंगे तो जो बुद्धिज्म 1000 साल चलने वाला था वो 500 साल में ही खत्म हो जाएगा। जैसे शुगर केन के फील्ड में कीड़े आकर के खत्म कर देते हैं पूरा खेत, इसी तरीके से अगर विमेन को इंक्लूड कर लिया गया तो पूरा संघ जो है वो करप्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आनंद के कंटिन्यूअस प्रेशर के कारण महात्मा बुद्ध अल्टीमेटली एग्री कर गए कि विमेन को भी इंक्लूड कर लिया जाए संघ में। लेकिन जब संघ में इंक्लूड किया गया तो उनके लिए जो रूल्स बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स थे जिसमें भिक्षुणी हमेशा सबऑर्डिनेट रही भिक्षु के। तो आप देख रहे होंगे थ्योरी और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। और जितना हम चर्चा करते हैं कि बुद्धिस्ट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाता है, एक इक्वल सोसाइटी को बनाता है, ये सब 100% करेक्ट नहीं था। सिर्फ संघ नहीं, हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सोसाइटी को वर्ण या जाति के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पे इकोनॉमी के हिसाब से सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया जाता था। किसी काम को बहुत अच्छा माना जाता था, किसी काम को बहुत खराब माना जाता था। काम यानी वर्क और सिप्पा यानी क्राफ्ट को उकट्ठ और हीन में कैटेगराइज किया जाता था। मतलब कोई सिप्पा हाई हो सकता है तो कोई लो। कसी यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी ट्रेड, गोरख यानी कैटल कीपिंग, इन सबको हाई वर्क माना जाता था। अब गौर कीजिए, ये गृहपति का प्राइमरी फंक्शन होता था जो गांव में रहता था, और गृहपति एक मेजर डोनर हुआ करता था। उन्हीं के काम को अगर आप डिग्रेड कर देंगे तो डोनेशन कहाँ मिलेगा? इसीलिए गृहपति से एसोसिएटेड काम को हाई स्टेटस में रखा जाता था। वहीं कोठक कम यानी स्टोर रूम कीपर, पुष्प छड़क यानी फ्लावर स्वीपर, इन सबको हीन काम माना जाता था। और नालका यानी बास्केट मेकर, कुंभकारा यानी पॉटर, पेशकारा यानी वीवर, चम्मकारा यानी लेदर वर्कर, नहापिता यानी बार्बर, इन सबको हीन सिप माना जाता था। तो
तो अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड डिफरेंशिएशन क्यों, सवाल तो बनता है। तो चलिए हम और भी एविडेंसेस देखते हैं कि कैसे बुद्धिज्म में भी इनइक्वालिटी का कंसेप्ट था। विनय पिटक में सोसाइटी को ब्रॉडली 2 स्ट्रेटा में क्लासिफाई किया गया है, एक है उकट्ठ जाति और दूसरा है हीन जाति। हाई कास्ट में क्षत्रिय और ब्राह्मण को रखा गया है और लो कास्ट में टोटल 5 ग्रुप को रखा गया है, चांडाल, वेणा, निषाद, रथकार और पुकुस। यहाँ 4 टियर वर्ण सिस्टम नहीं था क्योंकि बुद्धिस्ट इसे ब्राह्मणिकल कंस्ट्रक्ट मानते थे। तो उन्होंने पहले 2 वर्ण को एक्सेप्ट किया और बाकी बचे लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैटेगराइज किया। इवन आप आज भी देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अपने आप को सिर्फ वर्ण के हिसाब से डिनोट करते हैं, बाकी बच्चे लोग अपने कास्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो शायद ये बुद्धिस्ट की ही देन हो। खैर जो भी हो, लेकिन हमने एविडेंसेस देखे कि बुद्धिज्म में भी इनइक्वालिटी प्रेजेंट थी, भले ही उतनी नहीं जितनी वैदिक सोसाइटी में थी, लेकिन यहाँ पे हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यानी चांडाल जो एक वैदिक सोसाइटी में रह रहा होगा या ब्राह्मणिकल फोल्ड में जो रह रहा था, अगर वो बुद्धिज्म भी अपना ले तो उसके स्टेटस में कुछ खास फर्क नहीं आएगा, वो रहेगा आउटकास्ट ही। याद कीजिए बुद्ध के वो लाइन को कि अगर गलत काम करोगे तो अगले जन्म में चांडाल बनोगे। इवन आज के बुद्धिज्म को आप ले लीजिए, श्रीलंका के सिन्हाला बुद्धिज्म में भी हमें हाई कास्ट और लो कास्ट देखने को मिल जाता है, नेपाल में भी हमें देखने को मिल जाता है, इवन जापान जैसी सोसाइटी में भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो बुद्धिज्म कोई पनेशिया नहीं था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्धिज्म जैसे रिलीजियस मूवमेंट्स ने ही डोमिनेंट वैदिक रीति रिवाज को चैलेंज किया था, एक ऑल्टरनेटिव पाथ दिखाया था, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता दिखाया था। जो शूद्र वेद को सुन तक नहीं सकता था उसके लिए एक नया एवेन्यू खोले थे ये लोग। तो ये कोई रेवोल्यूशन से कम नहीं था। अब रही बात डॉक्टर अंबेडकर की कि उन्होंने सही किया या गलत, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का एक डिसाइडेड गोल था कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्होंने और भी रिलीजन्स को अपनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं कि इनका रिलीजियस एलिजेंस इंडिया में लाई नहीं करता, इसलिए वो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। सिखिज्म में वो बोलते हैं कि दलित का स्टेटस हमेशा दलित ही रह जाएगा। और फिर ये कन्वर्जन सिर्फ एक रिलीजियस जील नहीं था, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। डॉक्टर अंबेडकर इस एक्टिविटी से ये बता रहे थे कि अगर किसी धर्म में जात पात रहेगा तो लोग अपने अधिकार के लिए उस धर्म को भी छोड़ सकते हैं। गांधी ने अंबेडकर के इस कन्वर्जन प्लान पे बहुत तीखा टिप्पणी किया था। वो बोलते थे कि अंबेडकर हरिजन्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिए हैं कि यहाँ वहां ले जा सकते हैं। अगर आपको गांधी और अंबेडकर के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश को जानना है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। आप देख रहे थे क्रोनो क्लैरिटी। धन्यवाद। तक हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अल्पसंख्यक नहीं बना देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एससी ओबीसी के लोग भारत में बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं सबको बौद्ध बना रहा हूं। फिर ये 3 जाति के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, 10-12% हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है कि बौद्ध राष्ट्र बनाना है।
भारत का पहला ऐतिहासिक राजा और साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य अंपायर को माना जाता है, लेकिन इसकी नींव आज से 2500 साल पहले ही पड़ चुकी थी। 500 ईसा पूर्व में मगध, जो अब तक 16 महाजनपदों में से एक था, वो अब हर्यंका डायनेस्टी के नेतृत्व में एक पावरफुल साम्राज्य के रूप में उभर रहा था। 544 बीसी में मगध पर हर्यंका डायनेस्टी का राज शुरू होता है और इसके पहले शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार एक कुशल शासक था। इसने काफी सारे मैरिज अलायंस और कूटनीतियों का इस्तेमाल करके अवंती को कैप्चर किया और अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया, पर ये अपने ही बेटे अजातशत्रु के हाथों मारा गया। अजातशत्रु ने भी वैशाली को कैप्चर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु की भी हत्या उसी के बेटे उदायीन ने कर दी। उदायीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दी। उदायीन के बाद उसका बेटा नागदशक अगला शासक बनता है, पर ये एक योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इसी के सेनापति शिशुनाग ने 413 बीसी में इसकी हत्या कर दी और हर्यंका वंश का राज्य खत्म हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इन्हीं में से एक मगध भी था, जो आज का बिहार है। 5वीं शताब्दी से ही मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर रहा था और इसके कई कारण थे, जैसे कि यहाँ की उपजाऊ भूमि, भरपूर मात्रा में आयरन का पाया जाना, गंगा जैसी नदी का होना और जंगल में भरपूर मात्रा में हाथियों का पाया जाना, जो सेना को मजबूत और सशक्त बनाता हो। मगध पर कुल मिलाकर 3 राजवंशों ने राज किया है। 544 बीसी से 412 बीसी तक हर्यंका डायनेस्टी ने मगध पर राज किया। इस राजवंश को पिता की हत्या करने वाला राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी शासकों ने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की थी। 413 बीसी से 345 बीसी तक शिशुनाग डायनेस्टी ने मगध पर राज किया और 344 बीसी से 321 बीसी तक नंदा डायनेस्टी ने मगध पर राज किया। नंदा डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को मगध साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। Greetings, Maharaj. Who are you? I am Chanakya. I am a scholar in politics and administration. So what? I wish to be your royal advisor and help you consolidate and build a strong empire. What? You want to help me build a strong empire? Why don't you first build a strong feet for yourself? He can't even walk properly with that crooked feet. He will help me consolidate my empire itself. Dhanananda, you are underestimating an individual based on his physical appearance. Never judge a man based on his appearance. Judge a man based on his... I have come here with ounce of knowledge and with Mr. Royal Advisor, I have an advice for you. First, please fix your broken teeth and that flat nose. Dhanananda, you are insulting a wise man. I am insulting an ugly man. Can't imagine how ugly this beautiful kingdom gonna be with your presence. Keep watching what I do to your beautiful kingdom with my... சந்திரகுப்தா, நீ இந்த பாரத நாட்டை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இந்த 4 கோழிகளையும் ஒரே நேரத்தில் வழிநடத்த இயலுமா? இயலாதுதானே? பிறகு 400 அரசர்களை எவ்வாறு வழிநடத்த இயலும்? இயலும். அஸ்திரமும் சாஸ்திரமும் இணைந்து விட்டால் அப்போது ஒரு அரசர், ஒரு பாரதம் நிச்சயம் உருவாகும். சாணக்கிய சபதம் செப்டம்பர் 3 முதல் இரவு 7:30 மணிக்கு உங்கள் பாலிமர் தொலைக்காட்சியில் காணத் தவறாதீர்கள். जिसके मन में प्रेम और करुणा हो, मेरे हृदय पर होगा सिर्फ उसका अधिकार। कलीन की प्रजा के रक्त से करूंगा विजय तिलक। परिवार का मान जिसके लिए सबसे बढ़कर होगा, वो पाएगा मेरे जीवन में स्थान। परिवार का प्रेम कमजोर होने की निशानी है। जिसके नाम में विश्वास और न्याय की छवि हो, उससे जुड़ेगा मेरा नाम। कांप उठेगा इतिहास जब जब लेगा मेरा नाम। पर तकदीर लिखने वाली थी वो प्रेम गाथा जिसने बदला भारतवर्ष का इतिहास।
प्रचंड अशोक 6 फरवरी से रात 10 बजे कलर्स और जियो सिनेमा पर। जिसके मन में प्रेम और गणेश नडिक्कुम साम्राट अशोकन யுத்த பேரிகை முழங்கட்டும், அதுவே விரைவில் ஜெயபேரிகையாக மாறி ஒலிக்கட்டும். வெற்றி வெற்றி, அதை தவிர இந்த அசோகனின் வாழ்க்கை அகராதியிலே வேறு வார்த்தைகளே இடம்பெறக்கூடாது. போர் முரசு ஒலிக்கட்டும், அணிவகுத்து நிற்கட்டும் ரதகஜ துரகபதாதிகள். புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள். நிறுத்து நிறுத்து. அசோகவர்தனா, என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தாய்? வாலிபம் எடுக்கும் வாழ்நாளிலே எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பும் ஒருங்கே கொண்ட நீ எப்போதப்பா இப்படி கொடுங்கோலனாக மாறினாய்? புத்த பிட்சுவே, கலிங்கத்தின் மீது யுத்தம் கூடாது என்று சொல்கிறீரா? இல்லை இல்லை, யுத்தமே கூடாது என்கிறேன் நான். அதை எவராவது புடவை கட்டிக் கொண்டிருக்கும் புத்திசாலி இடத்தில் போய் சத்தம் போட்டு சொல்லும். அசோகா, நீ அறியாமல் பேசுகிறாய். கலிங்கம் என்னவோ கீரை பாத்தி அளவுள்ள நாடுதான். என்றாலும் அது உன் வம்சத்தவர் எவராலும் நெருங்க முடியாத உன்னத கீர்த்தி வாய்ந்தது என்பதை மாத்திரம் மறந்து விடாது. அதை மறக்காததால் தான் மரக்கோலம் கொண்டிருக்கிறேன். இப்படி அஞ்சா நெஞ்சு படைத்த அசோகவர்தனன் ஆடையிடுகிறான். கோழைகளே விலகிப் போங்கள், ரத்தம் கண்டு அச்சம் கொள்ளும் ஓழைகளே ஓடிப்போங்கள். வாழ்வா சாவா பார்ப்போம் ஒருகை என்று வெஞ்சினம் கூறும் வீரர்களே, என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள், என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள். அசோகவர்தனா, அசோகவர்தனா, போர், உக்கிரமான போர். ஒரு நாள் அல்ல, இரு நாள் அல்ல, 120 நாட்கள் போர் நடந்தது. கலிங்கம் வீழ்ந்தது, கலிங்கம் வீழ்ந்தது. ஆனால் தாயே, தாங்கள் யார்? என் மகன் இறந்து விட்டார். கதறி கதறி தொண்டை வறண்டு விட்டது. இதோ இருக்கிறது தாயே. இந்த கால நேரத்தில் மறைந்த என் மகனே வந்து உதவி செய்வது போல் நீ வந்திருக்கிறாய். யாரப்பா நீ? சாம்ராட் அசோகன். சாம்ராட் அசோகன், சாம்ராஜ்ய வெறி பிடித்த சாம்ராட் அசோகன், எங்கள் வருங்கால சந்ததிகளை வாயில் போட்டு விழுங்கிய வெறி பிடித்த அசோகன், மஞ்சளுமாயிருந்த பெண்களை விதவிகளாக்கி புலம்பி தவிக்க வைத்த அசோகன். ஐயோ, அவசியமின்றி போர் நடத்தி இத்தனை பேரையும் பலி வாங்கி இருக்கிறாயே. உனக்கு ஹிருதயம் என்பதே கிடையாதா? நீ அண்ணன் தம்பி அக்கால் தங்கையோடு பிறக்கவே இல்லையா? நீ மனிதன் தானா? மரத்தினால் செய்த உணர்ச்சியற்ற பதுமையா? ஐயோ, நீ கொலைகாரன், நீ கொலைகாரன், ரத்த வெறி பிடித்த வேங்கையிலும் கொடியவன். உன் கையால் தண்ணீர் குடிப்பதை விட சாவதே மேல், சாவதே மேல். சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி, தர்மம் சரணம் கச்சாமி. துறவியே, ஆந்தையும் வவ்வாலும் அலைகின்ற இந்த நேரத்தில் கழுகும் கோட்டானும் குடியிருக்கும் இந்த இடத்தில் தாங்களா? ஆமாம், நோயிருக்கும் இடத்தில் தானே வைத்தியனுக்கு வேலை. அதனால் தான் மண்ணாசை என்னும் தொழுநோய் பிடித்து தேம்பி அலையும் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன். ஏற்கனவே ஏர்முனைப்பட்ட நஞ்சை நிலம் போல் புண்ணாகி இருக்கிறது என் உள்ளம். தயவு செய்து மீண்டும் என்னை கெடுத்து விடாதீர்கள். அசோகவர்தனா, இந்த ஆழிசூழ் உலகத்தில் கெடுக்க முடியாத நபர்களே இல்லையப்பா. கேவலம் வெள்ளி பணத்திற்காக உடல் இன்பத்தை அள்ளி அள்ளி தரும் ஒரு விலைமாதை கூட கெடுத்து விடலாம் ஒருவன் நல்ல உள்ளத்தோடு அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதால். சத்திரிய குல திலகனே, சற்று நேரம் உன் காதுகளை எனக்கு கடன் கொடு. ஒரே ஒரு முறை சிந்தித்துப் பார், நீ எப்படி பெற்றாய் இந்த கலிங்க பூமியை என்று. அடுக்கடுக்காக கபால ஓடுகளை கொட்டி நிறுத்தி 1000 வீரர்களை கொன்று குவித்து
அவர்களது விதவை மனைவிமார்கள் அறுத்தறிந்த அழகுமிகு கூந்தலை கயிறாக திரித்து ரத்தம் தோய்ந்த கரங்களால் உன் வெற்றி கொடியை பறக்க விட்டிருக்கிறாய். இதுவா வீரம்? இதுவா வெற்றி? இதுவா விவேகம்? இதுவா மானம்? இல்லை இல்லை, இது அவமானம், அவமானம். மூர்ஜரே, தெளிந்த நீர் போல் இருந்த எனது உள்ளத்தை அறிவு கல்லெறிந்து குழப்பிவிட்டீர். ஐயோ, எனக்கு பைத்தியமே பிடித்து விடும் போல் இருக்கிறது. என் முன் இல்லாதீர், போய்விடும். போகிறேன். ஆனால் அசோகவர்தனா, மறந்து விடாதே, அன்புதான் இன்ப ஊற்று, அன்புதான் உலக ஜோதி, அன்புதான் உலக மகாசக்தி. அன்புதான் இன்ப ஊற்று, அன்புதான் உலக ஜோதி, அன்புதான் உலக மகாசக்தி. அன்புதான் இன்ப ஊற்று, அன்புதான் உலக ஜோதி, அன்புதான் உலக மகாசக்தி. ஆம், என் கண்கள் திறந்தன. பூட்டிய சிந்தனை கூட்டின் இருப்பு கதவுகள் உடைந்தன. அசோகா, நீ அருள் பெற்றாய், மருள் உடைத்தாய். ஐயோ, இந்த அநாகரிக மனித பதரின் அற்ப ஆசையால், வெட்டி பித்தத்தால் 100,000 பேர் உயிரை தத்தம் செய்திருக்கின்றனரே. 150,000 பேர் கையிழந்து, காலிழந்து, கண்ணிழந்து, மையெல்லாம் புண்ணடிந்து புலம்பி தவிக்கின்றனரே. என்ன செய்வேன்? என் பாவத்தை கழுவுவதற்கு கங்கை சென்றாலும் அந்த கங்கை நீரும் கலங்கப்பட்டதாகிவிடுமே. இத்தனைக்கும் காரணம் இந்த வாழ். ஆஹா, இந்த கொலை கருவியினால் எத்தனை உயிர்களை கிள்ளி எறிந்திருப்பேன், எத்தனை இளமிதயங்களை கிழித்தெறிந்திருப்பேன். கொடுமை, கொடுமையிலும் கொடுமை. இனிமேலும் இந்த நிலைமை நீடிப்பது மடமை, மடமையிலும் மடமை. ஆமாம், அக்ரோனி கணக்கிலே எதிரிகள் குவிந்தாலும் தொகையாக அவர்களை எதிரே நிறுத்தி ஒரே வீச்சில் வெட்டி வீழ்த்தியேன் வீரவாளே. இனி ஒழிந்து போய் என் முறையை விட்டு. கடும் புயலாய் சீறி வந்த காட்டானை பலவற்றை கூறு போட்டு என் அங்கத்திலே இடம் பெற்ற கொடுமை மிகு கட்டாரியே, இனி கலந்து விடு என் அறையை விட்டு. இனி இந்த அசோகன் மாறிவிட்டான், தலைகீழாக மாறிவிட்டான். ஏ கலிங்கமே, இனி எனக்கு பொன் வேண்டாம், மண் வேண்டாம், மணிமுடி வேண்டாம். இனி நான் உருவத்திலே சக்கரவர்த்தி, உள்ளத்திலே பிட்சுமூர்த்தி, பிட்சுமூர்த்தி. போதி மரத்து புத்தனே, ஆண் பெண் தவிர சாதி வேறில்லை என்று மேதினிக்கு சாற்றிய புத்துலக சித்தனே, எனக்கு நீதான் வேண்டும், உன் அன்புதான் வேண்டும், அறம்தான் வேண்டும். என்னை ஏற்றுக்கொள், என்னை ஏற்றுக்கொள். வட இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண சின்ன சின்ன சிற்றரசுகளை பற்றி பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட 187 BC கிட்ட கடைசி மௌரிய பேரரசரான பிருகதத்தரை கொன்று சுங்கா டைனாஸ்டியை புஷ்யமித்ர சுங்கா நிறுவுறாரு. அதுக்கப்புறம் கான்வா, இண்டோ கிரீக்ஸ், பஹலவாஸ், ஷாகாஸ், குஷனான்னு குறிப்பிடத்தக்க சில ராஜ்யங்கள் நார்த் இந்தியாவை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்படி மௌரிய பேரரசுக்கு அப்புறமும் குப்த பேரரசுக்கு முன்னாடியும் ஆட்சி செஞ்ச சில ராஜ்யங்களை பற்றி के वेस्टर्न साइड पे अटैक शुरू 730 AD से अरब्स ने भारत के वेस्टर्न साइड पे अटैक शुरू कर दिया था, पर 300 साल तक भी उन्हें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। अरब्स भारत के सिंध और गांधार रीजन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इसका रीजन ये है कि उस समय भारत के वेस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर हुआ करता था, जिसने जुनैद और हुली शाह जैसे अरब कमांडर्स को बहुत आसानी से हराया। एंड दिस लेजेंडरी एम्पायर वॉज कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, जिन्होंने भारत के वेस्टर्न साइड पे 730 AD से 1050 AD तक रूल किया। पर 1050 के आसपास ये डायनेस्टी छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में डिवाइड हो गया। और फिर क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। जब तक राजपूत प्रतिहार डायनेस्टी के रूप में यूनाइटेड थे, तब तक हम अनबीटेबल थे। दिस इज द क्लासिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ एकता में बल। आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में भारत यूनाइटेड है, और इसी यूनिटी का नतीजा है कि आज दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को थे मलेच्छों के सबसे बड़े दुश्मन। ये राजा थे मलेच्छों के सबसे बड़े दुश्मन। 738 CE में सिंध का आमिर जुनैद 50,000 की सेना के साथ भारत पर हमला करने वाला था, पर गुप्तचरों ने गुज्जर प्रतिहार के राजा नागभट्ट को इस हमले के बारे में आगाह कर दिया।
महाराज नागभट्ट ने कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ा, गुजरात के चालुक्य और गुहिल के बप्पा रावल के संग अलायंस बनाया। 40,000 की सेना लेके राजा नागभट्ट ने अरबों पर त्रिशूल व्यू फॉर्मेशन में सिंधु नदी के पूरब से हमला कर दिया। अरब फोर्सेस ने तेजी से हमला किया, इस उम्मीद में कि वो भारतीय सेना को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे और सीधे राजा तक पहुंच जाएंगे। पर भारतीय फौज अरब के इस आक्रमण को स्लो करने में कामयाब रहती है और इसी बीच नागभट्ट अपनी पर्सनल टुकड़ी के साथ जुनैद के फोर्सेस को आउटफ्लैंक कर देते हैं। अरब फोर्सेस पूरी तरह से घिर जाती है और नागभट्ट जुनैद को मारने में सफल हो जाते हैं। लीडर के मरने के साथ ही अरब फोर्सेस बिखरने लगती है और कायरो की तरह मैदान छोड़ के सिंधु के पार भाग जाती है। एनसीईआरटी में ऐसे इतिहास नहीं मिलेंगे, पर कमेंट सेक्शन में पूरी प्ले போட்டுச்சுன்னா எது ஜெயிக்கும்? விடை தெரியாத கேள்வியா இருக்குல்ல. அதே மாதிரி தான் வரலாற்றுல ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் இருக்குது. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகமது ஆஃப் கஜினி வந்து இந்தியாவை 17 முறை ரைடு பண்ணிட்டு இருந்த அதே சமகாலத்துல சவுத் இந்தியால வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மன்னன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவரோட பேரு தான் ராஜேந்திர சோழன். சோம்நாத் கோவிலை உடைச்சு அங்க இருக்கிற சிவலிங்கத்தை உடைச்சு எடுத்த கஜினி முகமது இருந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் சிவனுக்குன்னு அவங்க அப்பா வந்து மிகப்பெரிய பிரகதீஸ்வரர் கோவிலும் பையன் வந்து மிகப்பெரிய கங்கை கொண்ட சோழபுர கோவிலையும் கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஏனோ தெரியல, வரலாற்றுல கஜினி முகமது சவுத் இந்தியாவுக்கு வரல, ராஜேந்திர சோழன் வந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு போல. ஆனா சப்போஸ் அவங்க 2 பேர் மீட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் ஜெயிச்சிருப்பாரா இல்ல முகமது ஆஃப் கஜினி ஜெயிச்சிருப்பாரா? என்னை பொறுத்தளவுக்கு வேகமாக வந்து அடிச்சுட்டு திருடிட்டு ஓடுற முகமது ஆஃப் गजनी விட நின்னு அடிச்சு ஆடுற ராஜேந்திர சோழன் ஜெயிப்பாருங்கிறது என்னோட प्रेडिक्शन। इतिहास की सबसे बड़ी गलती जिसने भारत की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। ये बात है साल 1191 की, जब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। भारत को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस पर गौरी कब्जा करना चाहता था। गौरी आए दिन पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल लेने का संदेश भेजता था, लेकिन कभी न सर झुकाने वाले राजपूत कहां किसी के डर से अपना धर्म त्यागने वाले थे, जिसकी वजह से पहला तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए गौरी ने पृथ्वीराज से अपनी जान की भीख मांगी थी, और क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निहत्थे गौरी को उन्होंने जान की भीख दे भी दी, जो आने वाले सालों में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जंग के बाद गौरी को एक चिश्ती ने सुझाव दिया था कि हिंदू राजाओं को हराना है तो सीधी जंग नहीं बल्कि कोई षड्यंत्र करो, और मौका खुद गौरी के सामने चल कर आया जब पृथ्वीराज से गुस्साए हुए राजा जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से दूसरा बैटल ऑफ तराइन, जिसमें गौरी की जीत हुई और भारत में इस्लामिक हुकूमत की शुरुआत।